नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं द 30 सेकेंड्स रूल दैट विल इंश्योर दैट यू नेवर फेल द सीसैट पेपर। और उसके पहले मैं वो सारे मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट करते हैं while attempting the CSAT paper. For the students who are going to attempt the 2025 prelims, directly skip to the part where I'm discussing the 30 seconds rule. Because for you right now, time is very important, and the importance of time is exactly what I'm going to discuss in this video. और जिन एस्पिरेंट्स को बेसिक से समझना है कि सी सैट प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, वो ये वीडियो पूरा देखिए। एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स, फॉर्मूलाज और एलिमिनेशन टेक्निक्स। सी सैट इज अ स्ट्रैटेजी बेस्ड पेपर और उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखिए जैसे हम जीएस में करते हैं। वही सिमिलर स्ट्रैटेजीज हमें सी सैट में भी यूज करनी है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। See how even after scoring 89 marks in paper 1, this person has failed in the prelims because they got only 65.8 marks in the CSAT. This basically means कि अगर उनका एक सवाल भी सही हो जाता तो भी they would have qualified the prelims. 2019 में 156 marks score करने के बाद भी this person failed to qualify the prelims. And this is all because of the CSAT paper. And that's why everybody calls it the killer of dreams. In this video, we are going to see the what, why and how of the CSAT paper. What मैं discuss करूंगा कि CSAT paper है क्या, how we are supposed to look at it. Why में discuss करेंगे why people fail and why they struggle to clear this paper. और how मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 steps में आप इस पेपर को tackle कर सकते हैं. One is the 30-second rule, then your strategy and adaptability. CSAT का full form है Civil Services Aptitude Test. And in aptitude come all of these topics. अब इसमें comprehension and communication can be clubbed under English, logic, reasoning, mental ability and decision making can come under logic and reasoning part, and basic numeracy comes under maths or quant. इस पेपर में हमें 66 मार्क्स स्कोर करने हैं. There are 80 questions and we get 2.5 marks each for the right answer, and there is 1/3 negative marking for each wrong answer. Now as I said earlier, आपको इस पेपर को एक नए लेंस से देखना है. वो लेंस कौन सा है? That you have 120 minutes to solve 80 questions. That basically means you have 1.5 minutes, 90 seconds to solve every single question. इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. Now we come to the why. Why people struggle to clear this paper? Why are they scared of this paper? And why even after having the abilities to score 100 plus marks in paper 1, they fail to clear this simple paper. And there's a reason why I'm calling this a simple paper. Let me explain. तो पहले जानते हैं the purpose of CSAT. The objective of CSAT is to know whether a person has a basic aptitude to serve as a civil servant. और जैसे हमने पहले भी देखा, बेसिक एप्टीट्यूड में आता है लॉजिक एंड रीजनिंग, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल स्किल्स एज वेल. ये रहा यूपीएससी का पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग दिस पेपर. बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये सारे स्किल्स इम्बाइब करने ही पड़ेंगे टू क्लियर दिस पेपर, देन यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड. योर पर्पस इज नथिंग बट स्कोरिंग 67 मार्क्स इन दिस पेपर. तो ये मार्क्स चाहे आप 40 क्वेश्चंस करके लाए या 80 क्वेश्चंस करके लाए, does not matter. As long as you score 67, you clear the prelims. Then what can be the reasons why a person is struggling to clear this paper? The first important point is a lack of conceptual understanding of all these topics. And I feel कि जो भी candidate paper 1 का cut off clear कर सकता है after 1 year of preparation, this should not be a problem for them. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी की चीजें सिखाई जाती है. So then where is the problem? Problem lies here that ये सारी चीजें सीखने के बाद आप या तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते और पेपर में अप्लाई नहीं करते. लेट अलोन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको यूट्यूब में भी फ्री में क्वांट, लॉजिक एंड रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जैसे हर एक टॉपिक पे इतने सारे वीडियोस और ट्रिक्स मिलेंगे कि दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो चलिए, अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया और आपने प्रैक्टिस भी ढंग से कर ली, then what remains is improper time management. आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में. You have 1.5 minutes, basically 90 seconds to solve each and every question. But what we fail to do is that हम टाइमर सेट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. First, whenever you solve online test series, you do not solve the entire paper. Secondly, जब आप YouTube पे कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को बस सॉल्व करते हुए देखते हैं कि हाउ द टीचर इज सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस.
and even if you solve them, you take around 2 to 5 minutes to solve every single question. तो ये जो इक्वेशन है, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रैक्टिस में आता ही नहीं. देन वी कम टू द पार्ट वेर योर स्ट्रैटेजी मैटर्स. बहुत से लोग इन सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होते. या तो आपका रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, या तो आपका कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट अच्छा होगा, या आपकी ये दो चीजें अच्छी होंगी. Generally, people coming from science background are assumed to be good at reasoning and maths. People coming from arts background are usually assumed to be stronger at comprehension part. But paper solve karte waqt, it is very important for you to have a strategy. Strategy of which part you will tackle first. Strategy of how much time you will allot to every single part. Strategy of what to do if a certain parameter fails. अगर आपको लगा कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, अगर किसी सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए, तो आप क्या करोगे? Then the two most important things why most of the people fail. One thing I've noticed in most candidates who are able to clear paper 1 with a margin of 10 to 20 marks but have failed CSAT is that they have started fearing this paper. और उनका fear mostly targeted होता है इस सेक्शन पे, क्वांट एंड मैथ्स. और उन्हें इतना डर लगता है कि बेसिक से सवाल भी अगर आ गए तो वो उन्हें पढ़ते भी नहीं. दे डायरेक्टली स्किप द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन without even trying to attempt. And the second most important thing that eats away your marks as well as your time is this factor, your ego and your overconfidence. अब ये मैं किस सेंस में कह रहा हूं? फॉर अ स्टूडेंट हु इज गुड एट क्वांट एंड मैथ्स, उसके सामने अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन आ जाए विच सीम्स वेरी इजी, बट वाइल सॉल्विंग अगर उसने वो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन का लिमिट एक्सीड कर दिया, एंड इवन देन इफ ही इज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन व्हाट हैपेंस इज ही टेक्स इट ऑन हिज ईगो. तो चाहे 5 से 10 मिनट क्यों ना लग जाए, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहेगा. And because of that, what happens is first, he loses time. Second, he loses his composure and calmness, because of which his other questions are now going to suffer. And third important thing that he loses is his confidence. Let's say अगर आप पहले के 10 सवाल बहुत जल्दी और easily solve कर पाए, so if on the 11th question you come across such a difficult problem and you spend 5 to 10 minutes on that problem, तो होगा ये कि उस 11th क्वेश्चन के आगे के सारे क्वेश्चंस में आप डिस्टर्ब रहोगे और आप गलतियां करते जाओगे. सो नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस? फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स. द हाउ. इसमें पर्पस ऑफ सीसैट में आपको याद रखना है कि दिस इज द रेंज इन विच यू हैव टू बी. सीसैट पेपर में आपका पर्पस है बस 40 to 50 ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना जो आपके लिए इजी है. आपको सिर्फ इतने मार्क्स ले आना है बस. देखिए, जब भी हम पेपर 1 एनालाइज करते हैं, वी कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस जो हमें छोड़ देने होते हैं, जो ना हमारे स्टैटिक का पार्ट होते हैं, ना हमारे करंट अफेयर का पार्ट होते हैं. और ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में कोई टिप्स ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं चलता. ऐसे क्वेश्चंस जनरली एक ट्रैप होते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे ट्रैप में फंसते हैं उन्हें जनरली ऐसे सवालों में मार्क्स नहीं मिलते. वैसे ही सीसैट में भी देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर जस्ट टू ट्रैप यू, टू डिस्टर्ब योर पेस, टू डिस्टर्ब योर टाइम, टू डिस्टर्ब योर कामनेस, एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अवॉइड. अपना पर्पस ही ये है कि 80 में से ऐसे क्वेश्चंस चुन चुन के सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आप अगर 80% एक्यूरेसी से भी सॉल्व कर लो तो आप आराम से सीसैट क्लियर कर सकते हो. देन एज सीन अर्लियर, ये दो पॉइंट्स आपके पढ़ाई का पार्ट है. A basic conceptual understanding of all the topics in CSAT is a must. And secondly, practicing those is also a must. और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. योर स्टैंडर्ड गोल्ड सोर्स शुड बी PYQs. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द 30-second रूल. इस एक रूल से आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएंगे. ये एक सिंपल रूल है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका सीसैट का लेवल कुछ भी हो, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हमें हर क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड्स मिलते हैं और 1.5 मिनट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स स्पेंड करने हैं, और इन 30 सेकेंड्स में आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है और फिर सोचना है. In 30 seconds, you must be able to figure out कि अगर वो सवाल comprehension से है तो have you understood what it meant? Have you understood what it's asking? And would you be able to solve this question in the next 60 seconds?
अगर वो क्वेश्चन लॉजिक या क्वांट से है तो आपको यही चीज फिर से करनी है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग, एंड व्हाइल यू आर थिंकिंग क्वांट के क्वेश्चंस में आपको देखना है कि क्या आप उसका लॉजिक समझ पाए हो, क्या आप उसके बारे में कोई इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हो, या आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फॉर्मूलाज आते हैं या नहीं। और इन तीनों में से कोई दो चीजें भी अगर टिक होती हो, देन यू हैव टू स्पेंड योर नेक्स्ट 60 सेकेंड्स इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, एंड इफ नॉट यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर 30 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन को ना समझ पाए, ना उसके अराउंड कोई लॉजिक ढूंढ पाए, ना उसका कोई फॉर्मूला याद कर पाए, आपको वो क्वेश्चन ब्लाइंडली स्किप कर देना है। द फर्स्ट एडवांटेज दैट यू विल हैव इज दैट आप एक जगरनॉट बन जाओगे। आप एक के बाद एक इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एंड द मोमेंट यू सॉल्व जस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस एट दिस पेस, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा ऑफ सॉल्विंग द अदर क्वेश्चंस करेक्टली। एंड दिस रूल विल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रैटेजी। ये रूल आप लॉजिक या रीजनिंग के क्वेश्चंस में अप्लाई करें, कॉम्प्रिहेंशन में करें या मैथ्स में करें, आई गारंटी यू दैट आपका पूरा पेपर 1 घंटे में स्कैन करके और सॉल्व करके हो जाएगा। वंस यू गिव 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास 1 hour 20 minutes बचेंगे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट यू डिडंट हैव द टाइम और लॉजिक और फॉर्मूलाज टू सॉल्व। और ये टाइम जितना ज्यादा होगा आपके पास, आपके चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं आपको ये चीज समझाता हूं। दिस इज माई 2023 प्रीलिम्स मार्कशीट। I had cleared paper 1 by a margin of around 10 marks, and I had scored 87.5 in my CSAT paper. And I kid you not, मैंने अभी तक जितनी भी बार प्रीलिम्स दी है, मैंने हर बार CSAT में 45 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। मैं मेरे सारे पेपर्स का एनालिसिस एंड द मेथड्स बाय विच आई सॉल्व ये सब अपलोड करूंगा, बट फॉर दिस पेपर आई हैड सॉल्व जस्ट 42 क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी दिस इज माई स्कोर। मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, एंड आई विल शो यू हाउ नन ऑफ द मैथ्स क्वेश्चंस वर अ थ्रेट टू मी, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड वाज टू स्किप देम एग्जैक्टली बाय अप्लाइंग दैट 30 सेकेंड रूल। इसमें कभी कभी नुकसान भी होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं, बट एज आई सेड द मेन पर्पस इज टू क्लियर द प्रीलिम्स। अब देखिए, ये 2023 का पेपर है। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक से है, ये वाला भी। ये टॉपिक मेरे लिए हमेशा थोड़ा ट्रिकी रहा है, सो आई जनरली ट्राई टू अवॉइड क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स। मैंने 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन पढ़ा। When I could not figure out any formula or any logic of how I would be able to reach this answer, I skipped this question. Similarly, यही exact चीज मैंने इस क्वेश्चन में भी की है। Now for some people these questions might be very easy, कि अगर आपको वो फॉर्मूला पता हो तो आप immediately इनका आंसर निकाल पाओ। बट एग्जाम में मैंने यही सोचा कि अगर 30 सेकेंड्स में अगर मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा तो मैं इस क्वेश्चन को टाइम नहीं दूंगा। बट देन वी कम टू दीज टू क्वेश्चंस। इसमें मुझे सिंपल लॉजिक पता चला था कि मुझे बस यूनिट्स प्लेस का नंबर फिगर आउट करना है। इफ दैट कुड बी डिवाइडेड बाय 100, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 100। इस नंबर के एंड में दो जीरोस मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच द रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आई हैड टू फिगर आउट दैट द नंबर 2 रेज टू दिस नंबर का पैटर्न क्या होगा। 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, इन सब का एक पैटर्न होता है। ये रिकरिंग पैटर्न को जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे, आपको पता चलेगा कि यूनिट्स प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर। दिस आई कुड फिगर आउट इन जस्ट 10 सेकेंड्स आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया 30 सेकेंड्स में सॉल्व, ये भी 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो गया। सो नाउ आई एम एट अ 2 minute एडवांटेज फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस एंड अ 2 minute एडवांटेज फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस। फिर देखिए, ये क्वेश्चन भी 30 सेकेंड्स में मुझे सॉल्वेबल नहीं लगा, मैंने स्किप कर दिया। दैट गिव्स मी अनदर 1 minute एडवांटेज। ये क्वेश्चन भी 30 सेकेंड्स में ट्राई करके सॉल्व नहीं हुआ, दैट गिव्स मी अनदर 1 minute एडवांटेज। ये क्वेश्चन भी 30 सेकेंड्स पढ़ के लगा कि नहीं हो पाएगा, अनदर 1 minute एडवांटेज। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन हो गया था। पहले के 4 और अभी के 3, आई हैव अ 7 minute एडवांटेज नाउ, एंड नाउ यू विल नो व्हाई आई एम कॉलिंग इट एन एडवांटेज। ये क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस देखने के बाद मुझे डाउट आया कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, सो कंप्लीटली लेफ्ट, 1.5 मिनट्स एडेड। दिस क्वेश्चन सिमिलर स्टोरी, डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेफ्ट इट, तो यहां पे 1 minute एडेड। अब ये क्वेश्चन देख के तो समझ नहीं आया कि व्हाट वुड बी द आंसर, सो व्हाट आई डिड इज लिटरली ये पूरी सीरीज 2 बार लिखी
और इनमें से दो रैंडम ऑप्शंस चूज करके उसके अंदर पुट किए, और लकीली उनमें से एक पैटर्न लॉजिकल लग रहा था। बट इन डूइंग दिस आई स्पेंड अराउंड 2 to 2.5 मिनट्स। इसके पहले के क्वेश्चंस में जो मुझे अराउंड 8 to 9 मिनट्स का एडवांटेज मिला था, उसमें से मैंने बस 1 मिनट एक्स्ट्रा यूज कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें ना कोई लॉजिक यूज किया, ना कोई टेक्निक यूज की, लिटरली एवरी सिंगल ऑप्शन को मैंने यहां पे पुट करके देखा है, और ये करने के बाद ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता। सो दिस इज 2.5 मार्क्स सिक्योर्ड। वन ब्लंडर दैट आई कमिटेड इज दैट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इसका लॉजिक भी बहुत इजी था, लेकिन वो मुझे एग्जाम में उन 30 सेकेंड्स में क्लिक नहीं हुआ, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मैंने बाद में आके देखा भी नहीं। बट नो वरीज, बिकॉज एज आई सेड 87 मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने इस पेपर में, तो ये क्वेश्चन छोड़ना भी मेरे लिए एक गलती साबित नहीं होती। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर अडेप्टेबिलिटी। 30 सेकेंड रूल गिव्स यू अ टाइम एडवांटेज, और यही टाइम एडवांटेज है जो आपको हर सीसैट पेपर में हेल्प करेगा। बिलीव इट और नॉट, 2023 के पेपर में हर किसी ने बवाल मचाया था कि ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट सीसैट पेपर था। सम इवन क्लेम्ड कि आईआईटी ग्रेजुएट से भी इस पेपर के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। बट एज आई सेड अर्लियर, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं थे। दे वर मेंट टू बी स्किप्ड, दे वर मेंट टू बी लेफ्ट। अगर आप उन क्वेश्चंस की वजह से ट्रैप में फंसे हो तो वो आपकी गलती है। ये सारी फियर मॉन्गरिंग और ये कहना कि ये पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत से अच्छे लोगों से भी वो पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, कैंडिडेट्स के मन में डर पैदा करो और उस डर का एडवांटेज लेके उन्हें सी सैट के कोर्सेज बेचो। आपने देखा होगा 2023 के सी सैट के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेंस के पहले सी सैट के कोर्सेज लॉन्च किए थे, और हर किसी ने ये क्लेम किया था कि हम बहुत से डिफिकल्ट टॉपिक्स, बहुत से डिफिकल्ट कंसेप्ट्स, आईआईटी लेवल। बट देन फॉर योर सरप्राइज अगेन 2024 प्रीलिम्स में इन डिफिकल्ट चीजों में से कुछ भी नहीं आया। सीसैट का 2024 पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था। तो ये सारी फियर मॉन्गरिंग चीजों से दूर रहिए। आपको पेपर के शुरू में ही आइडिया लेना है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स में से कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, ये दो सेक्शन मिला के ही 42 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से लेट्स से आप अगर सिर्फ 30 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, तो भी इन 38 मैथ्स क्वेश्चंस में से आपको बस 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड आई कैन गारंटी यू 2023 का पेपर उठा के देखिए, आपको 38 में से अराउंड 15 to 20 ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आप डुएबल या इजी कहोगे। तो बात इसकी है ही नहीं कि क्वेश्चंस कौन से डिफिकल्ट है या कौन से ज्यादा है, कौन से कम है। बात बस यही है कि आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। So you decide what kind of combination you want to make. It is literally that single decision that will make you clear this paper. Second important thing is, number of questions तो change होंगे ही हर साल. Type of questions will also change. This is the 2019 CSAT paper and this is the 2023 CSAT paper. अब जो 30 सेकेंड रूल मैंने आपको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था, उसमें आप 2019 में ये पूरा पैसेज एज वेल एज ये क्वेश्चन पढ़ पाओगे। But in 2023, you will hardly be able to read this passage in the 30 seconds. Also, 2015 to 2019 में कुछ ऐसे passages भी थे जिसमें एक single passage पे 2 से 3 सवाल आते थे. But now, as you can see, the trend is to ask such a big passage and then just give one question on it. तो ये पेपर स्टार्ट होने के पहले फिगर आउट करना है कि इसे डील कैसे करें. And then the one and only thing that I ask you to do is कीप इट सिंपल। सीसैट को ओवरली कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सीसैट से डरिए मत, सीसैट को गलत पर्सपेक्टिव से देखिए मत। दिस इज अ टाइम बेस्ड पेपर, दिस इज अ स्ट्रेटेजी बेस्ड पेपर, एंड फॉर एवरी सिंगल कैंडिडेट दैट हैज द एबिलिटी टू क्लियर प्रीलिम्स पेपर 1, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग भी है। द ओनली थिंग्स कीपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग इज योर फियर, your ego and your wrong strategy. The moment you see this video, I just have one request. आप CSAT का कोई भी एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई किसी टेस्ट सीरीज का पेपर सॉल्व कर लीजिए एंड जस्ट इंप्लीमेंट दिस 30 सेकेंड रूल दैट आई टॉक्ड अबाउट। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इससे आपका डर खत्म हो जाएगा
और आप आराम से आपके पहले के स्कोर से 10 से 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। आई नो दिस इज अ वेरी हाई टाइम फॉर यू राइट नाउ, बट जस्ट गिव 1 hour at least and use this method. And do tell me in the comment section how many marks you could increase by using this technique. Thank you so much and all the best for your upcoming prelims.